Then the second question is very basic level. Account for the factors which led to the Battle of Plassey in 1757. So here the question is more about factors. So factors हमें बताने हैं. What were the circumstances which eventually led to this battle? So in the introduction we can just write about the Battle of Plassey fought on 23rd of June 1757. It was a culmination of event that was taking place in Bengal for long. तो थोड़ा सा वेग छोड़ दिया. For long का मतलब क्या है? ठीक है. That the Battle of Plassey was fought. डेट अच्छा मेंशन किया हुआ है. कल्मिनेशन ऑफ इवेंट विच स्टार्टेड विद द असेंशन विद द राइज ऑफ सिराजुद्दौला इन 1756. ऐसा करके लिखते तो ज़्यादा अच्छा इंट्रोडक्शन यहाँ पे बनता. ठीक है, बट बाकी ठीक है. पॉलिसीज के बारे में बात किया हुआ सिराजुद्दौला का. टुक वेरियस स्टेप्स टू असर्ट हिज सॉवरेंटी. दिस वाज द मेजर इशू. ही वाज ट्राइंग टू असर्ट व्हिच वाज नॉट लाइक्ड बाय हिज ओन कोर्ट पीपल आल्सो एज वेल एज द कंपनीज लाइक द English. So he warned company against the misuse of Dastaks. Then he also seized the Fort William in June 1756. ठीक है. Assertion of sovereignty intrigued the East India Company, and then eventually conspiracy against the Nawab, which all of us know, that Mir Jafar, Jagat Seth, Ami Chand, all of them, they came together, and as a result of this, all of them, they made a plan with the British to dethrone him. And that's why very good use of historiography by the student about K.M. Panikkar. K.M. Panikkar's here Plassey was a transaction in which the rich bankers and Mir Jafar sold the Nawab to the British. So that is something which is very good, which is mentioned here. Conspiracies. Third, the British ambition. Yes, this was also very important. British, they were a bit dependent upon Bengal. They used to import lot of bullion in order to purchase things from the area of Bengal. And in fact, around 60% of their all purchase from the South Asia or from the Asia itself, it was mostly from the area of Bengal. That's why this political ambition. And finally, this black hole tragedy. Black hole tragedy is about that when Sirajuddaulah, he went to the Fort William. So around 120 people, they were put in one single room which was not having ventilation. So because of that, many of them died, even though its historicity is still debated. And many of the contemporary Indian writers, they have not mentioned nothing about this black hole tragedy. So all these factors are eventually responsible, and then we have the Battle of Plassey, which was more of a treachery rather than any specific battle. So here in this question, you have to mention about the factors. So the student was able to identify the right kind factors, which includes the policies of Sirajuddaulah. Second, which includes the policies of the British, elements of conspiracy, and finally, it is about the black hole incident. If you wish to write, you can even mention the chronology. June 1756. This is the time where the Fort William, it was seized by the Nawab. October 1756. Robert Clive starts from South India and his march towards Bengal. He reaches Bengal in December 1756. In Feb 1757, the Nawab was ready to compensate all the losses of East India Company. He signed the Treaty of Alinagar. But by this time, the plan of treachery was ready. That's why he was not going to give it up. March 1757. This is the time where the English attacks the Chandranagar, which was the principality, which was the area under the control of French. And finally, thereafter, the offensive reaches its next level, where on 23rd of June 1757, the Battle of Plassey took place. On 25th of June 1757, Mir Jafar coronated himself. So this is the story. अगर लिखना चाहो तो इसको याद कर सकते हो. ठीक है, ऐसा टाइमलाइन पेपर में भी बना सकते हो अगर बनाना चाहो 10 मार्कर में. दिस विल फर्दर इम्प्रूव योर मार्क्स. It will differentiate your answer from the others. One more thing which I have noticed, that please, like many of the toppers also, when they use these words, they are not able to come up with the right kind of meaning. So de jure और de facto के बीच में difference जान लो. So यहाँ पे the great treachery got the Nawab Sirajuddaulah defeated and established as the de jure power of Bengal. तो de facto और de jure में दोनों पे difference होता है. De facto मतलब in fact है, even if it is not legally correct.
जो डी जूरे पावर है वो बक्सर के बाद में ज़्यादा बनता है, बिकॉज द रिकॉग्निशन कम्स, दीवानी राइट्स भी दिए जाते हैं। यहाँ पे डी जूरे वर्ड यूज़ नहीं करना है। Hi, welcome to Prep Career IAS. Today I'm here with a very important announcement. We are starting a brand new batch of History Optional Foundation. So if you are somebody who is looking for history as an optional, तो थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हिस्ट्री से फ़ायदा क्या होता है, कितने मार्क्स आते हैं, टॉपर्स कितने निकलते हैं, एंड देन इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस देन यू कैन जॉइन आवर इंस्टीट्यूट। चलिए बात करते हैं। सो द प्रोग्राम विल स्टार्ट फ्रॉम 23 जुलाई। इफ़ यू सी फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स, ओके, हर साल टॉपर्स के 300 या उसके आसपास मार्क्स रहे हैं। इन 2018 आई वाज एबल टू गेट 324 मार्क्स एंड विद द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव प्रोड्यूस्ड लार्ज नंबर ऑफ टॉपर्स। अगर आप देखोगे 17 में 316, 18, 19, 20, 21 एज वेल एज 22, एवरी ईयर पीपल आर गेटिंग अराउंड 300 और मोर देन 300 मार्क्स, उसके आसपास आ ही जाता है। इनफैक्ट टॉपर ऑफ 2023 शी ऑल्सो गॉट मोर देन 300 मार्क्स। सो इट्स ए स्पेसिफिक ऑप्शनल वेर यू गेट गुड मार्क्स। प्लस व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल? देखो आपके जीएस में बहुत हेल्प करता है। प्रीलिम्स में कभी 10 से 20 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं, तो 20 से लेकर 40 मार्क्स तक मैक्सिमम आपका यहाँ से हो सकता है डायरेक्टली। GS1 में 100 मार्क्स के आसपास, GS2 में 50 एंड GS3 में 25 मार्क। लैंड रिफॉर्म्स वगैरह वाले जितने भी टॉपिक्स हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के, वो सारे हिस्ट्री ऑप्शनल से ही डायरेक्टली लिंक्ड है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर अ स्ट्रेटेजिक ऑप्शनल जो थोड़ा सेफ भी रहे और जिसमें मार्क्स भी एक अच्छे लेवल तक आ जाए पढ़ाई करके, तो हिस्ट्री इज़ अ वेरी गुड ऑप्शनल। With respect to our classes, okay, if you see our methodology is a bit unique. What do we focus upon? First of all, we give some specific classes which are concept oriented, कि भाई आप बेसिक चीज़ें समझो। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, जैसे मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, सो यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ हैंड होल्डिंग इन द बिगिनिंग। तो वो हम सबसे स्टार्ट में आपको कुछ बेसिक NCERT क्लासेस देंगे। Then we'll go towards the core classes. These core classes are going to focus specifically on the topics of the history optional, and जो जितने भी topics हैं सब के ऊपर आपको अच्छे notes मिलेंगे, and side by side our classes are going to incorporate all the PYQs. जितने भी PYQs हैं सबको incorporate कर लेंगे। आपका एक अच्छा डेडिकेटेड रिवीजन टाइम मिलेगा शेड्यूल के साथ में। कंटिन्यूस असेसमेंट भी की जाती है कि हर 14 दिन के अंदर आपको एक टेस्ट देना है। इफ़ यू आर एबल टू गेट गुड मार्क्स इन द टेस्ट, इफ़ यू आर एबल टू डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपका अच्छे मार्क्स UPSC में भी आ जाएंगे। बट फॉर दैट यू हैव टू बी रेगुलर, एंड वो अच्छी हैबिट इनकलकेट करने के लिए हमने ये स्पेसिफिक प्रोसेस बनाया। एंड फाइनली होलिस्टिक मेंटरशिप, नॉट जस्ट फॉर ऑप्शनल, फॉर ऑल द पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज ऑल्सो। एनी काइंड ऑफ डाउट यू हैव विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर, हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स, हाउ टू क्लियर मेन्स, हाउ टू get maximum marks in the interview, all those things we focus on at Prep Career IAS. So once you are becoming part of this foundation course, it's not just about optional, it's also about your overall rank in the specific civil services itself. तो उन सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। देन अगर क्वांटिटेटिवली बात करोगे तो लगभग 150 प्लस सेशंस हो जाते हैं, 90 प्लस हमारी कोर कंसेप्ट क्लासेस रहती हैं, 40 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन हो जाते हैं क्लास के अंदर, एंड फाइनली जो आपको कुछ वैल्यू एडेड डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं टू मेक यू एट ईज विद द हिस्ट्री ऑप्शनल। क्यों? बिकॉज देखो कभी होता है कि प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन दे दिया आपको, ठीक है, साइड बाय साइड इंपॉर्टेंट मैप की जो साइट्स वगैरह उनकी कंपाइलेशन दे, तो ऐसे करके जितना भी एनालिसिस चाहिए होता है इस ऑप्शनल के लिए, उन सबको हमने डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, सो दैट हुएवर जॉइंस दिस उनको हम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आपके पास शुरुआत से ही एज रहे, और एज जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। सो दिस इज़ अबाउट द क्वान्टिटेटिव। देन टेस्ट मिल जाते हैं आपको, 14-15 टेस्ट मिल जाते हैं ओवरऑल मिला के। देन वेबिनार्स होंगे मेरे साथ में, क्रिस्प हैंडआउट है, एंड मेंटरशिप सेशन तो साथ में चलते ही रहेंगे। इन 22 वी वर एबल टू गेट अ वेरी गुड रिजल्ट इन हिस्ट्री ऑप्शनल, एंड यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, एंड दिस लेगेसी गोज अ लॉन्ग बैक। 2022 में भी बहुत अच्छे मार्क्स थे, 21 में इनफैक्ट द रैंक 1 शी वाज फ्रॉम आर टेस्ट सीरीज। सो इफ़ वी स्टडी वेल, इफ़ वी डेडिकेट आवरसेल्फ टू दिस ऑप्शनल कैन गिव यू वेरी गुड रिवॉर्ड। एंड हमारे साथ प्रिपेयर करोगे तो किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई माई सेल्फ बीन एन ऑफिसर, आई माई सेल्फ बीन एन एस्पिरेंट ऑफ स्टडिंग विद दिस ऑप्शनल। मैंने हर चीज़ देखी है, एंड माई एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 12 years टेल्स मी ओनली वन थिंग, दैट इफ़ यू आर स्ट्रेटेजिक, इफ़ यू आर मेथोडोलॉजिकल, एंड इफ़ यू फोकस ऑन द राइट एरियाज, यू कैन गेट वेरी क्विक रिजल्ट, बट येस यू हैव टू बी डेडिकेटेड फ्रॉम योर साइड। सो इफ़ यू आर समबडी विद एनर्जी, समबडी विद डेडिकेशन, बिकम ए पार्ट ऑफ दिस। 23 जुलाई से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, एंड आपको अच्छे तरीके से मेंटर करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू क्रिएट अ वेरी गुड सिनर्जी बिटवीन अस, एंड आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी विद रिस्पेक्ट टू दिस, मार्कशीट वगैरह भी अगर आप देखोगे तो यू कैन सी इवन माई मार्कशीट, यू कैन सी आई गॉट 324 मार्क्स हियर। You can call on these numbers. These are the numbers through which you can get connected to our counselors. और counselors के through जितने भी queries हैं with respect to this program, you can eventually solve them out. आप offline visit भी कर सकते हैं in ORN, उसका भी एड्रेस वगैरह आपको वो सेंड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।